Good morning, students. This is your GK class. Today we will do chapter number 6, Lights, Camera, Action. You have heard this line, lights, camera, action, during any movie shoot or film shoot where there is shooting going on of a movie. So in this chapter we will learn how is the movie made, or what are the different processes or different things which are required to make a movie. So children, there is the first thing, stunt people. You know children, there are many actions required in a movie that are not performed by the hero. Like if there is Amir Khan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, or any other actor acting in the movie, he or she just only say the dialogue but does not perform all the actions like fighting actions or any other actions is done by the stunt man. If the hero is walking on the road and a car hits him, he falls down and there are many injuries to him, that is not real. That means the actual hero is not performing those action. That action is done by the stuntman. And who are stuntmen? Stuntmen are the persons who are appointed for the specific task or specific stunts. Now, stunt people perform difficult or dangerous actions, often in place of the stars. Who are stars? The movie actors. The next time you watch a film, be sure to read the names of the people who have put the film together in the end credits. In the end credits means when the film gets over, you see some information is given afterwards, who has casted the movie, who has played what role, huh? All the names of the persons involved in the movie are given at the last. So there are the names of the stuntmen also. Now next one is the producer. Producer is the charge of raising the money for the film and managing it. Even before the script can be written, the production team must raise the money for the film. The producer also arranges for the film to be shown in the theaters around the world when it is complete. Now, children, a producer is a person who raise the money, means who invest the money, who brings the money to make a मूवी. क्योंकि बच्चों एक मूवी को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इन करोर्स एंड करोर्स में आता है खर्च, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो पैसा उन्हें कौन देता है? जो प्रोड्यूसर देता है। अब प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? प्रोड्यूसर जायज़ सी बात है कि जब जो पैसा जिसके पास सबसे बहुत ज़्यादा होगा वही दे सकता है। तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या खुद कोई सुपरस्टार हो जिसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हो, वो पैसा दे सकता है। तो जो किसको पैसा देगा? उसमें जितने भी लोग काम कर रहे होंगे मूवी में, उन सबको वो पैसा देगा। लाइक हीरो को देगा, एक्टर को देगा, एक्ट्रेस को देगा, डायरेक्टर को देगा, स्टंटमैन को देगा, म्यूजिशियंस को देगा और कैमरामैन को देगा, ब्यूटिशियंस को देगा, जो और इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं और सबको पैसा प्रोड्यूसर देता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्क्रीन राइटर. नाउ स्क्रीन राइटर इज ऑल्सो ए पर्सन हु इज वर्किंग इन द मूवी. नाउ स्क्रीन राइटर का क्या काम होता है? पूरी मूवी का जो स्टोरी होती है वो एक स्क्रिप्ट कहलाती है। तो जो स्क्रिप्ट होती है उसमें
पूरी मूवी की स्टोरी लिखी हुई होती है। अब उस मूवी में कौन सा डायलॉग किसको बोलना है, वो स्क्रीन राइटर का काम होता है कि एक्टर को क्या बोलना है, एक्ट्रेस को क्या बोलना है, विलेन को क्या बोलना है, और कॉमेडियंस को क्या बोलना है, किसको क्या रोल मिल देना है और क्या बोलना है, ये स्क्रीन राइटर का काम होता है। सो वो पूरा अपने पास पूरी एक स्क्रिप्ट बना लेता है कि किसको क्या बोलना है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट वन इज द डायरेक्टर। Now, the artistic leader of the team making the film is the director. The director makes all the decision of the film, including the casting as well as how scenes should be shot. The director is usually the final authority on matters related to the script. Now, director जो होता है उसका मेन काम होता है कि मूवी को डायरेक्ट करना, मतलब मूवी कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, उसको कैसे शूट आउट करवाना है, वो सारा डायरेक्टर का काम होता है। कोई भी डायलॉग बोलता है, उस डायलॉग को कितना सिंसेरिटी से बोलना है या कॉमेडी से बोलना है या नॉर्मली बोलना है, ये सब डिसाइड कौन करता है? डायरेक्टर डिसाइड करता है। किस एक्टर को लेना है, किस एक्टर को, किस एक्ट्रेस को लेना है ये स्टोरी के लिए, वो भी डायरेक्टर डिसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले, सबसे पहले एक स्टोरी बन जाती है किसी प्रोड्यूसर ने या किसी स्क्रीन राइटर ने या स्टोरी राइटर ने एक स्टोरी बनाई और उसने प्रोड्यूसर को दी। प्रोड्यूसर को अगर जब अच्छी लगती है वो स्टोरी तो वो कहता है ठीक है हम इस पर मूवी बनाएंगे। फिर जब मूवी सैंक्शन हो जाती है कि हाँ मूवी बनेगी, फिर उसको डायरेक्टर को दिखाया जाता है और डायरेक्टर डिसाइड करता है कि हम इस मूवी में जो कास्टिंग रोल्स होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स दिए जाएंगे, उसके लिए हम किसको सेलेक्ट करें। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ इसमें पिता का रोल इनको करने को मिल जाएगा, मम्मी का रोल इनको करने को मिल जाएगा, हीरो का रोल इसको मिलना चाहिए। तो फिर वो सब हीरो हीरोइन के पास जाते हैं और उनको वो पूछते हैं कि आपके पास टाइम है, खाली हो तो आप हमारी ये मूवी कर सकते हो। और फिर अगर उनके पास वो हाँ कर देते हैं तो फिर उनसे हम डील साइन कर लेते हैं और उनको जो पैसा देना होता है वो कौन देता है? प्रोड्यूसर देता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फिर वो पूरी मूवी की शूटिंग शुरू होती है और इस मूवी की शूटिंग में लगभग 1 साल 2 साल लग का टाइम लग सकता है, कुछ कुछ तो 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट वन इज द सिनेमेटोग्राफर। He is also called the director of photography. He is responsible for creating the overall look of the film, including the photography and the light effects. The cinematographer of Mad Max Fury Road made the landscape seem like a world destroyed by nuclear war. This played a big role in making the film successful. Now, cinematographer का रोल होता है कि फिल्म का बैकग्राउंड बनाना, मतलब आप भले ही समुद्र के किनारे ना खड़े हो, आप रूम के अंदर होंगे, आप इलाहाबाद में हो, आप बनारस में हो, आप लखनऊ में, कहीं भी हो, लेकिन वो आपको ऐसा फील करा देगा, ऐसी मूवी का बैकग्राउंड बना देगा कि आपको लगेगा कि आप किसी समुद्र के किनारे हो, या फिर आप लगेगा किसी पहाड़ पे हो, या किसी बर्फ़ वाले रीजन में हो जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ गिर रही है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ द सिनेमेटोग्राफर। वो आपको पिक्चर का पूरा सीन क्रिएट करता है कि मूवी किस टाइप की बैकग्राउंड में चलनी चाहिए। जैसे कि आप रूम, एसी रूम में बैठे हो, लेकिन वो पीछे से आपका ऐसा बैकग्राउंड बनेगा कि आप डेजर्ट एरिया में घूम रहे हो। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल दी work of cinematographer. Now next is the film editor. The film editor carefully selects the best shots, edits them and arranges them to create the scenes of the film. He works closely with the director, cinematographer and sound editor. It is the job to give the film its final shape. अब देखो बेटा, मूवी तो हमारी 2.5 घंटे या 3 घंटे की मैक्सिमम होनी ही होनी है। इससे ज़्यादा बड़ी मूवी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी मूवी अलाउड नहीं है, या अगर हो कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो हमें इसी स्टिपुलेटेड टाइम के ड्यूरेशन के अंदर ही मूवी को शूट करना है। तो हमने जब मूवी शूट की है पूरा 1 साल 2 साल, तो हमने बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे पिक्चर्स हमने शूट किए होंगे।
तो उनमें से जो सबसे सही होगा उसको ही रखना है और बाकियों को डिलीट करना है, एडिट करना है, या किसी सीन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको एडिट करके सही करना है। तो ये सब काम किसका होता है? फिल्म एडिटर का होता है। ठीक है। नाउ कम्स मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर are in charge of how actors look in the film. Rishi Kapoor's extensive aging makeup for his character in the film Kapoor and Sons took 3 to 5 hours every day. It was done by renowned Hollywood makeup artist Greg Cannon. Greg Canham. Now, makeup artists are the persons who are doing the makeup of the actor and actresses. नाउ इनका काम होता है कि किसी भी इंसान को कैसा दिखना है वो ये बना सकते हैं। जैसे कि अभी अगर 10 साल का बच्चा है और उसको 20 साल का बच्चा दिखना चाहिए तो वो दिखा बना सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट। या फिर अगर कोई 40 साल का आदमी है और उसको 20 इयर्स का लड़का बनाना है तो वो भी ये कर सकते हैं। ऐसी कई सारी मूवीज़ आई हैं जिसमें आपने देखा है कि कुछ एक्टर जो होते हैं वो बहुत अपने छोटे बचपन में चले जाते हैं और फिर भी वो वैसे ही बचपन की जैसे उनकी शक्ल दिखती है, और फिर वो बड़े हो जाते हैं तो बाद में बड़े जैसे दिखने लगते हैं। तो ये सारी जो चेंजेस होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? वो मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू होती हैं। So children, I hope you have understood all the roles of different persons in the process of filmmaking. Now come to quick quiz. Who plays the title role of PK? You have all seen the movie PK of Amir Khan, isn't it? The answer is Amir Khan itself, the alien in the film PK. So it is very common, a very famous movie. Everyone has seen movie PK. The role was played by Amir Khan. Second, which epic film known for lavish sets and cinematography won the National Award for the Best Film in 2015? That is Bahubali. Bahubali the Beginning. Okay. And who was the which film based on a famous novel by Ian Martel has a tiger named Richard Parker and an orangutan named Orange Juice? You might have seen this movie, but I have seen this movie. In this movie, it is based on this story of a boy, और वो जो है एक वॉयज पे जा रहा होता है, समुद्र में एक जहाज़ पे जा रहा होता है और जहाज़ में पानी भरने लगता है, वो टूटने लगता है, तो वो एक लाइफ बोट होती है, उस पर वो जाकर वो लड़का उतर जाता है लाइफ बोट पे और वो समुद्र में चली जाती है और उस लाइफ बोट में कुछ जानवर भी आ जाते हैं। अब वो जानवर कहाँ से आ जाते हैं? वो जानवर एक्चुअली उसी बड़े से शिप में रहते हैं, क्योंकि वो शिप पूरा ज़ू वालों का शिप होता है, जो सर्कस में जाते हैं ना सारे जानवर को लेकर, उनका होता है। तो वो सारे जानवरों को लेकर जा रहे होते थे, तो जब जानवर भी कूद कर उसी लाइफ बोट पर बैठ जाते हैं, तो उसमें से एक टाइगर होता है, टाइगर का नाम होता है रिचर्ड पार्कर। रिचर्ड पार्कर और वो लड़का दोनों ही उस बोट पे ट्रैवल करते हैं काफ़ी दिनों तक। तो ये स्टोरी है कौन सी मूवी की? मूवी का नाम है लाइफ ऑफ पाई। Now, next one is which actor played the role of Rani in the film Queen? एक मूवी आई थी क्वीन, उसमें जो एक्ट्रेस थी उसका नाम बताना है, उसका नाम है कंगना रनौत। Now, next one is the Star Wars series is one of the most popular film series. Who directed the film? Who directed the first film in the series, Episode 4, A New Hope? Was George Lucas. Okay, he was the director of that movie, George Lucas. So I end up this video here. Thanks, children.